जी मैं I'll give you. Hi, right at the center. Yeah. Hello, hi. This is Kunal here from India Forums. Thank you. Firstly, the trailer looks great. Congratulations on that, and obviously, it's already received such a great response. My question is for Vivek, sir. Vivek, sir, I'm right at the center. Yeah, hi. Thank you. My question is, sir, because it's such a tricky subject. Everybody knows the kind of stuff going into it in real life, and I'm sure you must have faced a lot also during the research time. There has been reports and there has been stuff that the figures like Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, and so many other journalists were apparently working against the whole thing and all that. Is that being a part of this film as well? Are there the darker aspects also being shown in the film? यार ऐसे सवाल मत पूछा हाँ वही सर, the vaccine war. मैं कोई भी स्टेप पर हाँ yes all the usual suspects need to be exposed. It was a war situation. See what is a war? War is when your life is under attack, and during COVID everybody's life was under attack, and at that time there were some people where often we think that the soldiers of the country are the people who are taking guns and fighting on the border. But in this situation, there were lots and lots of people, all the COVID frontline workers, the people in administration, people who were flying special planes at that time, and of course the scientists, they were trying to protect our lives and the sovereignty of the country. And at that time, it is very unfortunate that some people were selling India and our lives. I mean, can you believe it? That some people were getting money to promote foreign vaccines, and they were trying to sabotage Indian vaccine for their political agenda. So, and the names you took are usual suspects. I mean, they are always standing against anything which is in the interest of the country. So, obviously, if we are making a film called The Vaccine War, the enemies of India will be exposed. I don't want to take any names. Just one thing. Sorry to interrupt, but here we are, all set to honor the heroes. The real life heroes. So अगर हम उससे related सवाल रखें तो अच्छा रहेगा. Thank you so much. Sir, we'll give you the mic. Don't worry. मैं mic लेके आता हूँ. हेलो सर, मैं दीपेश पांडे दैनिक जागरण से। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जो लॉकडाउन कोविड का टाइम है, उस टाइम तो कई स्टोरीज आई, कई उस पर फिल्में भी बनी, सबने अलग अलग पहलू दिखाए। क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हेलो, अभी आ रहा है क्लियर? हाँ, मुंह में डालो मत। जी, तो मैं कह रहा था कि कोविड टाइम को लेके या लॉकडाउन को लेके अलग अलग स्टोरीज आई, अलग अलग लोगों ने फिल्में बनाई, अलग अलग पहलुओं से बनाई। क्या वजह रही कि आपको लगा कि ये जो वैक्सीन की स्टोरीज है, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमें ये स्टोरीज लोगों के सामने लानी चाहिए? लोगों ने अलग अलग तरीके दिखाए कि कभी पलायन को लेके दिखाया, कभी मजदूरों को लेके दिखाया, कभी, बट आपके लिए क्या इंस्पिरेशन है कि मुझे इस पे बनाना है? यार पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये कोविड की वैक्सीन जरूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है। इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर। मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग, हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूँ, तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाया। क्या बात है। जस्ट बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो नहीं, पर ये बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह की कहानियां तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे। हम हर चीज बनाने में थोड़ा लेट होते हैं, तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है, उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं उनको तुरंत बताना चाहिए। एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पोर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड। मैं बता दूं आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है। मैं आपको एक रीजन सबको बताना चाहता हूँ। जो कैंसर की जो कैंसर का जो एक पहला डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अभी बताता हूँ, डॉक्टर सुब्बाराव वाज हिज नेम। मैं कल ही, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो दिस। 1 सेकंड। वाई सुब्बाराव, ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था
कि he made the first anti-cancer drug called methotrexate, और it was written by an American scientist. He said he deserved 3 Nobel prizes, not 1, 3 Nobel prizes. पर unfortunately प्रॉब्लम क्या होता है कि जब चीज होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते, वो चली जाती, खत्म हो जाती। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला, एक वीरोलॉजिस्ट ने, कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियां निकलती हैं, ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियां नहीं निकली हैं। पर आज तक बायोसाइंस और वीरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली, वैक्सीन बनाने के बाद भी, इस साल के 26 जनवरी में भी नहीं निकली। प्रॉब्लम ये है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो, तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। हम हेल्थ के नाम पर सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो अगर हम अपने बायोसाइंस में, वीरोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी जिंदगी सेफ है, अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को, तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मा पावर इन द वर्ल्ड। जी सर, एक सवाल और रहेगा। फिलहाल में एक काफी ट्रेंडिंग चीज चल रही है वन नेशन वन नेम को लेकर, कि इंडिया और भारत को लेकर, और आपके पोस्टर में भी इंडिया कैन डू इट लिखा भी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? और अगर हिंदी सिनेमा की बात करें, चूंकि हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो उस पर वन नेशन वन नेम का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या देख रहे हैं आप? यार अभी इसको छोड़ ही दिया जाए, पिक्चर में ही जवाब है ना। यू वांट टू से समथिंग? मैंने हमको हमारे पहले मैं कुछ बोलूंगा वो तुझे भी समझ में नहीं आएगा, और जो तू बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको पूछ रहा हूं, तेरे समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? एक नॉर्मली क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो सामने वाले के पल्ले पड़े, मैं बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रहा, बस हो गया, जवाब मिल गया ना। Hi, Vivek sir, Pallavi ma'am. Hi, sir. I am from News 18. First of all, big congratulations on winning the national award. And my question is, Vivek sir, in an interview, you had said that whatever the collections was for the Kashmir files, you actually exhausted all of them to make the vaccine war. Even at this stage in your career, for both of you, would you say that it is still difficult to get financiers on board? आप वो सब छोड़िए, ये देखिए, आप तो जर्नलिज्म, आप तो फिल्म जर्नलिज्म में ही है। आप कोई सा भी पेपर, न्यूज चैनल, कुछ भी उठा के देख लीजिए, जब भी बात पिछले 9 महीने से, सब जानते हैं हमने ये फिल्म बनाई है, लेकिन whenever they talk about the most awaited films या इस साल की रिलीजेस या अगले 3 महीने में जो फिल्में आने वाली हैं, आप देखिएगा उसमें वैक्सीन वॉर का नाम भी नहीं होता। आज सुबह ही, मैं अभी आने के पहले ये फोन पे मुझे एक जाने माने बड़े यहाँ के वो हैं मीडिया जर्नलिस्ट या ट्रेड एनालिस्ट, जो भी बोलूँ, यहाँ विद्यमान नहीं है अभी, उन्होंने सुबह मुझे ऐसे ही भेजा किसी का, और उन्होंने लिखा कि द एक्सपेक्टेड फिल्म्स ऑफ दिस मंथ, इस महीने की, सितंबर की, और उन्होंने लिखा नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट हिट इज गोइंग टू बी अनदर फिल्म व्हिच इज कमिंग ऑन द 28, और हमारी फिल्म का नाम भी नहीं लिखा था रिलीज में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन फाइनेंस करेगा? नहीं, आप समझी नहीं मैंने जो बोला। So that's why we have to, हमें रोज अपना कुआं खोदना पड़ता है और खुद अपना पानी निकालना पड़ता है। Hello, Pallavi ji. To your left. Hi, this is Russell D'Silva from PTI. Your थोड़ा जोर से बोलो। This is Russell D'Silva from PTI. Your character is based on a real life scientist. So we would really very much like to know in your own words how difficult it was to portray this real life character, and what were the inspirations you took from the real life person to do the role. So Russell, my character is